Hi friends, welcome to another video by the Tangled Learning Hub. And today we are going to understand a very sweet poem that is The Rainbow Fairies. And the poet of this poem is L.M.Hadley. And in this poem, we are going to learn how rainbows are formed. Yes, you heard that right. The poem is in such a sequence that you will understand step by step how the rainbows are formed. So, before beginning, let us understand the title of the poem. There are two words, rainbow and fairies. So, what exactly is a rainbow? And also, one more thing, I'll be sharing the pictures also of the difficult words or the difficult things, or whichever pictures will be available. I'll be sharing those with you in the poem during the discussion of the poem. So, okay, let's first discuss what is a rainbow. I'm very, very sure you all must have seen rainbows. If not in reality, you must have seen the rainbows in books or maybe uh, in cartoons or maybe in your mobiles or maybe in mobiles or in pictures. So, rainbow is a curved line of different colors. Yes, different colors are there. Seven colors are there. And this line sometimes appears in the sky when the sun shines through rain. Okay, so what is a rainbow? A curve of different colors, and when does it appear? It appears when there is sun and when there is rain. So, for a rainbow formation, you need sun and you need rain. That we'll discuss later on how it is formed. That is there in the poem. Okay, and the second word in the title of the poem is fairies. So, what are fairies? So, fairy is not a real character. Like fairies are not there in real. Fairies are imaginary characters. And what is a fairy? It is a small creature with wings and magic powers. Yes, a small creature with wings and magic powers. That creature is called a fairy. Alright, let's start with the first stanza. The first stanza says, two little clouds, one summer's day, went flying through the sky. They went so fast they bumped their heads and both began to cry. अब पोएट क्या कह रहा है कि दो क्लाउड्स आए और कौन सा सीजन था? समर सीजन. समर सीजन था. दो छोटे छोटे क्लाउड्स, क्लाउड्स मतलब बादल, दो बादल आए और वो स्काई में, आसमान में उड़ रहे थे. और सीजन कौन सा था? कौन सा मौसम था? गर्मियों का, समर्स डे. दे वेंट सो फास्ट दे बम्प्ड देयर हेड्स. और वो इतनी तेजी से उड़ के आ रहे थे कि वो दोनों आपस में टकरा गए. बम्प्ड देयर हेड्स मीन्स कि उनके जो सर थे वो आपस में टकरा गए. एंड बोथ बिगैन टू क्राई. और वो दोनों क्लाउड्स रोने लग गए. अब आप एक रेनी डे इमेजिन करें. तो बारिश होने से पहले क्या होता है? थंडर. राइट, थंडर क्या होता है? जब स्टॉर्म आता है या बिजली कड़कती है, उस टाइम पे जो बादलों में से बहुत लाउड नॉइज़ आती है, तूफान के टाइम पे या बिजली चमकने के टाइम पे जो बहुत लाउड नॉइज़ आती है स्काई में से, आसमान में से, उसे हम थंडर बोलते हैं. राइट. तो जब ये तूफान वाला मौसम होता है तो शुरुआत कैसे होती है? बादल आते हैं. राइट. और थंडर मीन्स ऐसे आवाज़ आती है, लाउड आवाज़ आती है स्काई से. और लाइटनिंग होती है. लाइटनिंग फ्लैश क्या होती है? जो बिजली चमकती है उसे हम लाइटनिंग बोलते हैं. तो तूफान में ये सब होता है.
तो इस फर्स्ट स्टैंजा में भी पोएट यही एक्सप्लेन कर रहा है कि पहले बादल इकट्ठे हुए, फिर बादल आपस में टकराए। जब कोई चीज़ आपस में टकराती है तो क्या होता है, साउंड क्रिएट होती है, राइट। तो जो थंडर की साउंड है वो पोएट यहाँ पे शो कर रहा है कि जब वो आपस में टकराए तो साउंड आई, मीन्स थंडर आया। पहले बादल आए, फिर थंडर मीन्स साउंड्स आई स्काई में से, और फिर उसके बाद क्या होता है, बारिश शुरू हो जाती है, राइट। बादल आते हैं, थंडर और लाइटनिंग होती है, फिर क्या होता है, बारिश शुरू हो जाती है। तो जब ये क्लाउड्स बादल आपस में टकराते हैं तो ये दोनों रोने लग जाते हैं। तो रोने का बम्प्ड देयर हेड्स का मतलब क्या हुआ, थंडर, और बोथ बिगैन टू क्राई, क्राई का मतलब क्या हुआ, बारिश शुरू होना। ऑलराइट, अब इसी स्टैंजा में से हम इसकी राइम स्कीम भी देख लेंगे। तो राइम स्कीम के लिए हमें लास्ट वर्ड्स देखने होंगे इन लाइंस के। तो फर्स्ट लाइन में लास्ट वर्ड क्या है, डे। अब हम सेकंड लाइन का लास्ट वर्ड देखेंगे, क्या वो राइम हो रहे हैं। डे स्काई, नहीं, ये राइम नहीं हो रहे, इनकी साउंड बिल्कुल ही डिफरेंट है। तो फर्स्ट को हमने लेटर दे दिया ए, सेकंड को, क्योंकि सेकंड डिफरेंट साउंड है, उसको हमने लेटर दे दिया बी। नेक्स्ट थर्ड लाइन में लास्ट वर्ड है हेड्स, डे स्काई हेड्स, तीनों ही राइम नहीं हो रहे, साउंड सिमिलर नहीं है, तो इसे हम डिफरेंट लेटर देंगे सी। नेक्स्ट फोर्थ लाइन में लास्ट वर्ड है क्राई, क्राई में क्राई और स्काई, यस दीज टू आर राइमिंग। तो अगर हमने स्काई को बी लेटर दिया है तो क्राई को भी हम बी लेटर देंगे। तो इस तरीके से हमारी राइम स्कीम बन गई है ए बी सी बी। Another important thing, the figure of speech used in this stanza is personification. And how is that? अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस देखी हैं तो उनमें आपने personification देखा होगा। तो personification क्या होता है कि नॉन लिविंग थिंग्स को हम ह्यूमन करेक्टर्स दे देते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स को पोएट ह्यूमन करेक्टर्स दे देता है, तो उसे हम कहते हैं पर्सोनिफिकेशन का यूज़ हुआ है। तो यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन कैसे यूज़ हुई है। फर्स्ट थिंग, द क्लाउड्स बम्प्ड देयर हेड्स। नाउ टेल मी, डू द क्लाउड्स रियली हैव हेड्स? दे डोंट हैव हेड्स। हेड किसके होते हैं, ह्यूमन बीइंग्स के, राइट। लिविंग बीइंग्स के हेड्स होते हैं, नॉन लिविंग के तो नहीं होते हैं, क्लाउड्स के तो बिल्कुल ही नहीं होते हैं। ऑलराइट, तो दिस इज़ वन थिंग जिससे हमें पता लग रहा है कि जो ह्यूमन करेक्टर है, इंसानों वाली क्वालिटीज़ क्लाउड को, बादलों को दी गई है हेड वर्ड की हेल्प से। नेक्स्ट लाइन, बोथ बिगैन टू क्राई। क्राई, हु क्राइज? लिविंग बीइंग्स, जो जिंदा इंसान, जानवर जिनमें इमोशंस हैं वो रोते हैं, वो क्राई कर सकते हैं। क्या बादल क्राई कर सकते हैं? नो, दैट इज़ नॉट पॉसिबल, राइट। तो यहाँ पे फिर से नॉन लिविंग थिंग को लिविंग बीइंग का करेक्टर दिया गया है, क्राइंग का करेक्टर दिया गया है, हेड की क्वालिटी दी गई है, क्राई की क्वालिटी दी गई है। तो ये एक एग्जाम्पल है हमारी पर्सोनिफिकेशन की। तो इस स्टैंजा में हमने राइम स्कीम आइडेंटिफाई कर ली है और हमने पर्सोनिफिकेशन डिस्कस कर ली है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्टैंजा। फर्स्ट स्टैंजा में हमने डिस्कस किया था कि थंडर के बाद बारिश शुरू हो गई थी। अब सेकंड स्टैंजा में देखते हैं क्या होता है। Old Father Sun looked out and said, "Oh, never mind, my dears. I'll send my little fairy folk
to dry your falling tears. अब तक हमने देखा कि अब तक हमने जो पोम में डिस्कस किया उसमें क्या था कि थंडर हुआ, फिर रेनफॉल हुई, उसके बाद फिर सन बाहर आया और फिर सन ने कहा कि मैं अपनी फेरीज को भेजूंगा, वो तुम्हारे आंसू रोक देंगी, मीन्स रेनफॉल रोक देंगी मेरी फेरीज। नेक्स्ट स्टैंजा में लिखा है, वन फेरी केम इन वायलेट एंड वन वोर इंडिगो, in blue, green, yellow, orange, red, they made a pretty row. अब जो फेरीज थी वो कौन से कलर्स के गाउन्स में आई थी? वो सारे कलर्स वो थे जो रेनबो वाले थे, राइट? तो रेनबो के कलर्स कौन से होते हैं? वायलेट एक लाइट ब्राइट पर्पल सा कलर होता है, फिर इंडिगो होता है कलर रेनबो में जो कि एक डार्क ब्लूइश पर्पल कलर होता है, फिर ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये सारे कलर्स आपके रेनबो में होते हैं। तो जो फेरीज आई थी उन्होंने इन कलर्स के गाउन्स पहने हुए थे। 7 फेरीज आई थी और 7 फेरीज ने ये अलग अलग कलर्स के गाउन्स पहने हुए थे। तो जब वो आई उन्होंने एक प्रिटी रो बना दी। प्रिटी रो मीन्स एक लाइन सी बना दी, एक लाइन में आके वो खड़ी हो गई या एक लाइन में वो फ्लाई करने लगी। यहाँ पे इस स्टैंजा में हमें रेनबो के सारे कलर्स हम याद कर सकते हैं। इसका एक कोड भी होता है जो मैं आपको भी बताऊंगी, वो है विब ग्योर, VIBGYOR। विब ग्योर अगर आप कोड याद करेंगे तो आपको रेनबो के कलर्स याद करने में बहुत आसानी होगी। तो V मीन्स वायलेट, I इंडिगो, B ब्लू, G ग्रीन, Y येलो, O ऑरेंज, R रेड। तो इस तरीके से आप रेनबो के कलर्स याद कर सकते हो। ओके, तो इस स्टैंजा में क्या पोएट ने हमें बताया कि सन ने जो फेरीज भेजी थी आंसू रोकने के लिए, या हम कह सकते हैं रेनफॉल रोकने के लिए, वो आ गई हैं और उन्होंने ये कलर्स के गाउन्स पहने हुए हैं। नेक्स्ट स्टैंजा सेज, they wiped the cloud tears all away, and then from out the sky upon a line the sunbeams made, they hung their gowns to dry। जो फेरीज आई थी उन्होंने क्लाउड्स के टीयर्स वाइप कर दिए। वाइप मीन्स पोंछ दिए। तो इस लाइन से हमें क्या पता लगता है? क्लाउड्स के टीयर्स वाइप करना मीन्स जो रेनफॉल थी अब वो रुक गई है। एंड देन फ्रॉम आउट द स्काई अपॉन अ लाइन द सनबीम्स मेड। और फिर जब मौसम सही होता है, रेनफॉल हल्की सी रुक जाती है, उस टाइम पे क्या होता है? तो उन्होंने जब क्लाउड्स की रेनफॉल रोकी तो कैसे रोकी उन्होंने? अपने गाउन्स के साथ, अपने कपड़ों के साथ, गाउन्स के साथ उन्होंने जो रेनफॉल थी या आंसू थे वो उनके साथ पहुंच दिए। तो अब जब जैसे आप हैंकी के साथ अपना गीला फेस या आंसू साफ करते हो तो हैंकी गीला हो जाता है, उसी तरह से जब ये फेरीज ने उनके आंसू, इतने ज़्यादा आंसू साफ किए तो इनके गाउन्स जो थे वेट हो गए। वेट मीन्स गीले हो गए। तो उधर से आपको पता, हमने पिछले स्टैंजा में डिस्कस किया था कि सन भी है वहाँ पे, राइट? तो स्काई में से सन की जो बीम्स हैं वो आ रही थी। बीम्स क्या होती हैं? रेज, किरणें। सन की जो किरणें थी, सन की जो लाइट थी वो आ रही थी। तो एक सन की जो रे थी उससे एक लाइन सी बन गई।
और उस सन की रे पे, उस सन की किरण पे इन्होंने, फेरीज ने, अपने जो कलरफुल गाउन्स थे, गाउन्स के हमने कलर पिछले स्टैंजा में डिस्कस किए हैं, सारे कलर कौन से थे, रेनबो वाले थे। तो इन्होंने गाउन्स अपने वहाँ पे सन की किरणों पे लटका दिए। सन की वो किरणों वाली लाइन पे इन्होंने अपनी गाउन्स हंग कर दिए। हंग क्या होता है, लटकाना, जैसे मम्मा कपड़े धोने के बाद बाहर तार पे सुखाने के लिए डालते हैं, वैसे इन्होंने अपने गाउन्स वहाँ पे सूखने के लिए डाल दिए, हंग कर दिए, ड्राई होने के लिए। ड्राई क्या होता है, सूखने के लिए। अब देखिए रेनबो कैसे फॉर्म होता है। रेनबो के लिए हमने डिस्कस किया था कि हमें सनलाइट चाहिए और रेन ड्रॉप्स चाहिए, रेनफॉल चाहिए, राइट। जो सन में से लाइट आती है वो वाइट लाइट होती है। जो सन में से वाइट लाइट आ रही है उस पे उन्होंने, फेरीज ने, अपने जो गीले गाउन थे, राइट, तो वो गाउन्स में क्या था, रेन ड्रॉप्स थे ना, पानी था, रेन ड्रॉप्स थे। जब वो सन की लाइट उन रेन ड्रॉप्स वाले गाउन में से निकल के जाती है तो वहाँ पे रेनबो फॉर्म होता है, राइट। हमने डिस्कस किया था कि सनलाइट चाहिए रेनबो के लिए और रेन ड्रॉप्स चाहिए, राइट। तो सन भी है, सन की किरणें भी हैं, सन की किरणें गीले जो गाउन थे उनमें रेन ड्रॉप्स थे, उनमें से निकल के जाती हैं, तो अलग अलग रेनबो के कलर्स उसमें से निकलते हैं और रेनबो फॉर्म हो जाता है। तो ये तो एक तरह से पोएट की इमेजिनेशन से उन्होंने हमें ये एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि इस तरीके से रेनबो फॉर्म होता है। और रियलिटी में भी कुछ ऐसे ही होता है। मैं आपको ये एक कॉन्सेप्ट दिखाऊंगी और इसके रिलेटेड मैं वीडियोस भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगी। आप डिटेल में इस रेनबो फॉर्मेशन को अगर समझना चाहते हो तो साइंटिफिक तरीके से, तो आप वो वीडियोस देख सकते हो। ये सपोज कीजिए कि जो लेफ्ट साइड पे जो लाइन आ रही है, वाइट लाइन, ये सन की लाइट है, और जो ये ट्रायंगल है, ये प्रिज्म है, ये ट्रायंगल आप सपोज कीजिए ये एक रेन ड्रॉप है, राइट, रेन ड्रॉप, पानी। जब ये सन की रे, सन की वाइट लाइट इस रेन ड्रॉप में से निकलेगी तो ये अलग अलग एंगल्स पे बाहर निकलेगी, राइट। ये वाइट लाइट जब रेन ड्रॉप में से निकलेगी तो इस तरीके से अलग अलग एंगल्स पे थोड़ा सा बेंड होके फिर निकलेगी, और जब ये इसमें से बाहर निकलेगी तो कुछ इस तरीके से कलर्स में निकलेगी, राइट। तो ऐसे ही जो रेनबो है वो फॉर्म होता है। एक बार हम पोम दोबारा से डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट थंडर वॉज देयर, देन first clouds were there, then thunder was there, means sound was there, then rainfall started, and next was sun came out. Then when the sun came out, the fairies dried their tears, clouds के जो tears थे fairies ने dry किए। फिर उन्होंने, फेरीज ने, अपने जो गीले गाउन थे वो सन की लाइट पे लटका दिए सुखाने के लिए, और जब सन की लाइट गीले गाउन्स में से निकल के गई, इसी तरीके से गीले गाउन्स में से लाइट निकल के गई तो अलग अलग कलर्स बाहर आए उसमें से और रेनबो फॉर्म हो गया। So this was your very beautiful simple poem by L.M.Hadley. Alright, we have discussed the poem, and one art activity you can do for this poem, that is, you can draw a rainbow scene. Yes, and please do not forget, you have to draw the rainbow with correct colors, right? The code which I gave you, Webcure, you need to follow that code, and then you will be drawing the rainbow. So in that rainbow scene you can have a beautiful garden scene, you can
you can have rainfall, you can have sun, you can have fairies, and that is your imagination, that is your creativity. And now let's discuss some word meanings. Bumped. Bumped means hit. Fairy. Fairy means a small creature with wings and magic powers. Sunbeam. Sunbeam means a ray of sunlight. Folk means people. Thunder. Thunder means the sudden loud noise that comes from the sky, especially during a storm or heard after a lightning flash. Rainbow. Rainbow is a curved line of different colors that sometimes appears in the sky when the sun shines through rain. Make sentences. Rainbow. All the children ran out to see the rainbow. You can post other sentences also in the comments section. Fairy. The princess in the fairy story had long hair. Sunbeam. He sat looking at the dust in the sunbeam. जब सन की लाइट पड़ती है तो उसमें कई बार हमें डस्ट पार्टिकल्स दिखाई देते हैं, तो इस सेंटेंस का मीनिंग वो है. What is now? First question is, what is the poem about? The poem is about how rainbows are formed. Why do the clouds cry? The clouds cry because they bump their heads. What season is it? It is summer. What is the rhyme scheme of the poem? The rhyme scheme is A, B, C, B. All these things have already been discussed. Name the poet of the poem. That is L.M.Hadley. Find out examples of personification from the poem. This also has already been discussed. One example is the clouds went so fast they bumped their heads and both began to cry. Here, human qualities have been given to the clouds by using the words head and cry. Next, old father sun looked out and said. Here again, human qualities are given to the sun by using the words looked out and said, and also father word is also a human quality. Next, match the action in the poem with the real facts. Now, I told you that this poem is an imagination. Fairies are not there, sun does not speak, clouds do not cry, right? तो जो पोम में एक्शन दिया गया है, इमेजिनरी एक्शन दिया गया है, हमने बताना है कि वो रियल लाइफ में कैसा होता है. तो पोम में था कि क्लाउड्स बम्प देयर हेड्स. तो क्लाउड्स बम्प देयर हेड्स ये हमारी इमेजिनेशन है, पोएट की इमेजिनेशन है. रियल लाइफ में क्या होता है? थंडर होता है. मीन्स क्लाउड्स में से, स्काई में से आवाज़ आती है, लाइटनिंग के टाइम पे आवाज़ आती है. क्लाउड्स क्राई. तो ये इमेजिनेशन है कि क्लाउड्स रोते हैं, बट रियल लाइफ में क्या हो रहा है? रेनफॉल हो रही है. नेक्स्ट, फादर सन लुक्स आउट. फादर सन बाहर देख रहा है. तो रियल लाइफ में सन नहीं देख रहा है ऐसे. ये क्या हो रहा है? सन शाइन कर रहा है. बादलों में से सन बाहर निकल के शाइन कर रहा है. ड्राई द फॉलिंग टीयर्स. तो ड्राई करना, सुखाना, टीयर्स को सुखाना, ये हमारी इमेजिनेशन है, बट रियल लाइफ में क्या होता है? जो बारिश है वो रुक जाती है. फेरीज ऑफ डिफरेंट कलर्स कम आउट इन अ रो. तो फेरीज बाहर आना मीन्स उन्होंने कौन से कलर्स के गाउन्स पहने थे? उन्होंने रेनबो कलर के गाउन्स पहने थे. तो इसका मतलब रियल लाइफ में क्या हो रहा है? रेनबोज आ रहे हैं. रियल लाइफ में फेरीज नहीं आती हैं. रियल लाइफ में जब सन निकलता है और बारिश की बूंदें होती हैं एटमॉस्फेयर में, तो वहाँ पे क्या होता है? रेनबो फॉर्म होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम ऑल द कलर्स ऑफ रेनबो. ओके, सो दिस कोड आई गिव यू. विप क्योर. V is violet, I indigo, B blue, G green, Y yellow, O orange, R is red. और जब ये रेनबो फॉर्म होता है तो आपने एक और चीज़ ध्यान में रखनी है. तो वी वायलेट जो ये कोड है, ये जस्ट लर्न करने के लिए कि रेनबो में कौन से कलर होते हैं. जब रेनबो फॉर्म होता है तो
तो सबसे ऊपर हमें रेड कलर दिखता है, तो जो इसका उल्टा सीक्वेंस है तो वो है जो हमें दिखाई देता है नीचे से, आर से, रेड से। तो रेनबो में हमें पहले रेड दिखता है, फिर ऑरेंज, फिर येलो, फिर ग्रीन, फिर ब्लू, इंडिगो एंड वायलेट। Alright, so this way, with the help of this code WebCure, you can learn the colors of the rainbow. Now, your homework for practicing this poem, you can learn the poem for poem recitation. Alright, I hope this video will definitely help you. You have understood how rainbows are formed, and I am very sure you have enjoyed the poem also. And do give it a reading. Thank you so much. Do like, share, subscribe, and if there are things you if there are other things which can be added which you want to share about the poem, please you can send that in your comments section. Thanks a lot.